سب سے پہلے تو شہباز شریف نے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان فلی سپورٹ بھی کرتا ہے اور ویلکم بھی کرتا ہے جو آن گوئنگ کوششیں ہیں، ایفرٹس ہیں ڈائلاگ کی، یہ جو جنگ ہے مڈل ایسٹ کے اندر یہ ختم ہو، اور اس پیس کے امن کے انٹرسٹ میں ہم اور ریجن کے اندر سٹیبلٹی لانے کے لیے ہم اپنی کوششیں جو ہیں وہ جاری رکھیں گے اور اس کا اعادہ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو یو ایس اور ایران ظاہر ہے جتنے بھی فریق ہیں وہ اگر اعتماد کریں یا وہ سپورٹ کریں یا وہ ہماری طرف آئیں اور وہ بات کرنا چاہیں تو پاکستان مکمل طور پر تیار بھی ہے، اور پاکستان کے لیے یہ اعزاز کی بات ہوگی کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں کوئی میننگ فل کنکلوسیو جو ٹاکس ہیں فار کمپریہنسو سیٹلمنٹ، یہ جو آن گوئنگ کانفلکٹ ہے اس کی جامع قسم کی مکمل قسم کی کوئی سیٹلمنٹ کروانے میں اگر پاکستان کردار ادا کر سکے تو ہم بڑے آنرڈ فیل کریں گے۔ یہ انہوں نے ٹویٹ کیا۔ اس کے تھوڑی ظاہر ہے یہ جب انہوں نے ٹویٹ کیا ہیڈ آف سٹیٹ لوگوں کو ٹیگ نہیں کرتے۔ شہباز شریف کے اس ٹویٹ کی جب آپ ورڈنگ پڑھتے ہیں اور اگر آپ حکومت میں رہے ہیں یا میڈیا میں رہے ہیں تو دونوں صورتوں میں آپ کو بہت ہی آرام سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹویٹ بنیادی طور پر ڈرافٹ یا تو واشنگٹن میں ہوا ہے یا پاکستان میں ڈرافٹ ہوا ہے، لیکن واشنگٹن میں ٹرمپ کی چیف آف سٹاف یا جو بھی وہاں سے معاملات ہینڈل کر رہا ہے انہوں نے باقاعدہ اس ٹویٹ کو دیکھا ہے اور اس کو اپروو کیا ہے۔ تو کیا انتتہ کھاڑی یدھ سماپتی کی اور ہے؟ جی ہاں، جس سمے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس سمے تک جے ڈی وینس روانہ ہو چکے ہیں واشنگٹن سے۔ وہ اپنے ایئر فورس کے پلین میں بیٹھ کے اسلام آباد کی اور روانہ ہو گئے۔ جی ہاں، کل جس چیز کا ہم لوگ مذاق اڑا رہے تھے بھائی صاحب، وہ چیز تو ایسا لگتا ہے کہ صحیح ثابت ہونے والی ہے۔ یعنی کہ پتہ چلا ہے کہ ایران کے وہی اسپیکر صاحب، جی ہاں، محمد باقر غالباف، تو وہ غالباف صاحب جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور جے ڈی وینس جو ہے وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور یہ بھی سنا گیا ہے دو طرح کے ورژن آئے ہیں، یہ ایک تو یہ ہے کہ وٹکاف جو تھے وہ اسلام آباد میں تھے، پھر وٹکاف وہاں سے اڑ گئے اور اب تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ جائیں گے۔ کہاں گئے ہیں وٹکاف؟ وہ شاید سعودی عرب والوں سے بات کرنے گئے، اور جے ڈی وینس جب تک پہنچیں گے بھائی اسلام آباد پہنچنے میں وہاں سے کم 12 گھنٹے تو لگیں گے نا۔ نمسکار، السلام علیکم، ست سری اکال، جے جھولےلال۔ میں ہوں جی پریم مٹلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ کا پروگرام۔ حقیقت یہ ہے، ابتدا میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، کل کے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح ٹرمپ نے 5 دن کی جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ پس پردہ ہمارے ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ اس سلسلے میں اس نے ایران کی پارلیمنٹ کا جو اسپیکر ہے باقر کلباف، اس کا حوالہ بھی دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ باقر کلباف نے تو اس بات کو جھوٹ قرار دیا اور ایسا کہا کہ یہ جھوٹی باتیں ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ حقیقت ہے کہ وہ چاہتے ہیں ایران والے بھی کہ کسی نہ کسی طرح مذاکرات کریں، ٹیبل پہ بیٹھیں اور اس جھگڑے کا کوئی حل تلاش کریں۔ ابھی یہ بھی میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ 3 ممالک ہیں، ایک تو پاکستان، اس کا جو آرمی جنرل ہے عاصم منیر، اس نے کوشش کی ہے، ٹرمپ کے ساتھ بات کی ہے، اور اس کے علاوہ ترکی کا جو صدر ہے رسب طیب اردوغان، وہ بھی ہے، میڈیشن کرنا چاہتا ہے، اور عبد الفتاح السیسی جو مصر کا صدر ہے، تینوں کوششیں کر رہے ہیں اس سلسلے میں۔ اچھا، ابھی کل پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف، اس نے ٹویٹر، مطلب آج کل تو اس کو ایکس کہا جاتا ہے، اس پر ایک پوسٹ ڈالی اور اس میں اس نے اس بات کا اشارہ دیا کہ ہمیں خوشی ہوگی
अगर ईरान और अमेरिका दोनों सुलह की बातचीत करें तो हम उसके लिए मेज़बान बनने को तैयार हैं, यानी वी वेलकम यू बोथ इन पाकिस्तान टू कम हियर एंड टॉक विथ ईच अदर। अब जैसे ही उसने ये पोस्ट डाली ट्विटर पे, तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर सदर ट्रंप ने अपना जो उसका ट्रुथ सोशल है उस पर उसको रीट्वीट कर दिया। यानी अभी देखिए, उसने अपनी तरफ से एक लफ्ज भी इसके साथ मिलाया नहीं है, यानी नो कमेंट। लेकिन जब वो ट्वीट करता है उसको, तो इसका मतलब ही इज इन अ मूड टू टॉक। और ये वैसे ये भी तो है कि मैं आपको कल बता चुका हूँ कि उसने कहा है कि हमारे पसे पर्दा मुज़ाकरात जारी हैं। अब इस सिलसिले में ईरान की तरफ से कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि पहले तो कहते थे कि वो इनके जो जेनेवा में हो रहे थे मुज़ाकरात ईरान के और अमेरिका के, तो उसमें इसके दो बंदे थे, स्टीव विटकॉफ जो बातचीत कर रहा था, और सदर ट्रंप का दामाद है जारेड कुशनेर। लेकिन कहा ऐसे जा रहा है कि ईरान इन दोनों को मुज़ाकरात में पसंद नहीं करता। उसकी जगह पर वो चाहता है कि अमेरिका का जो नायब सदर है जेडी वांस, जिसकी अहलिया जो है एक हिंदुस्तानी निजाद खातून है उषा वांस, आपको हम बता चुके हैं कई प्रोग्रामों में, तो जेडी वांस के लिए वो तैयार हैं कि उसके साथ वो बातचीत करेंगे। तो अभी लग ऐसे रहा है कि ये 5 दिनों के अंदर अंदर कुछ न कुछ तो होके रहेगा। खैर, हम तो शुरू से डे 1 से ये दुआ मांग रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके झगड़ा ख़त्म हो जाए, क्योंकि जंगें जो है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये बहुत कॉस्टली लग्जरी होती है और कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, भले ही अमेरिका कितना अमीर क्यों न हो, लेकिन उसको भी फिर तकलीफ होगी, उसकी भी इकोनॉमी जो है इस मुतासर होगी। अभी मैं इसका एक छोटा सा मिसाल दूं, यानी ये 28 फरवरी से जंग चालू हुई, इससे पहले अमेरिका में आम बंदों के लिए $4 में 1 गैलन पेट्रोल मिलता था, अभी वो $6 हो गया है। जबकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल मैन्युफैक्चर मतलब एक्सप्लोरर है, उसमें से निकलता है धरती में से, लेकिन उसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है। वो खुद भी मिडिल ईस्ट से तेल खरीदता है और उसको रिफाइन करता है। अच्छा, इसके साथ साथ एक दूसरी खबर भी है, और वो ये है कि कल सदर ट्रंप ने भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात की, और उस पर जो जाहिर है इस वक्त तो अमेरिका ईरान जंग ही जो है हॉट टॉपिक है पूरी दुनिया में, जो लोग भी बात करते हैं तो इसी पे बात करते हैं, और जब अमेरिका के सदर से बात होगी तो इसी पर होगी। तो सदर ट्रंप ने और वज़ीर आज़म मोदी ने दोनों ने इस बात पे जोर दिया कि जितना हो सके जल्द से जल्द ये हॉस्टिलिटीज़ ख़त्म होने चाहिए। और मोदी ने इस बात पे ज़्यादा जोर दिया कि ये जो आबनाए हॉर्मुज़ है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़, इट मस्ट बी केप्ट ओपन, नो वन शुड बी अलाउड टू वेपनाइज इट, जैसा कि ईरान अभी कर रहा है। और उसकी वजह से पूरी दुनिया के जो लाले पड़ गए हैं, हर जगह हर चीज़ महंगी होती जा रही है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि ईरान ने आबनाए हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर रखा है। जंग ख़त्म हो जाए या ईरान वहाँ से सारे टैंकरों को गुजरने दे, तो इससे हमें उम्मीद बनती है कि बहुत सारी चीज़ों का हल निकल आएगा। और इसके साथ लेकिन अभी कुछ एक अजीब बात सुनने में आई है, ये कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं वो भी ऐसा कह रहे हैं, खुदा बेहतर जानता है। वैसे पहले हमने ये तो सुना था कि सऊदी अरेबिया का जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, जिसे उर्फ आम
में MBS कहा जाता है, उसके कहने पर ही अमेरिका ने हमला शुरू किया था ईरान के ऊपर, और जिसकी वजह से ईरान का रहबर आला जो था अली खामनाई, उसको कत्ल कर दिया गया। अब ऐसा कहा जा रहा है कि MBS जो है सदर ट्रंप पर जोर डाल रहा है कि जंग बंद नहीं कीजिए, क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। पिछले 47 साल से ये जो ईरान है वो पूरी मिडिल ईस्ट, क्या पूरी दुनिया के लिए एक कैंसर बना हुआ है, क्योंकि उसकी सारी जो ताकतें हैं, सारा जो पैसा है वो इसी पर खर्च होता है। डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल, और उसके लिए वो हमास पैदा करता है, हिजबुल्लाह पैदा करता है, हुती पैदा करता है, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो MBS का कहना ये है कि ये मौका है कि ईरान को एकदम खलास कर दिया जाए। मतलब उसका यही होगा। फिर हम तो ऐसा समझते हैं कि जब तक वहाँ पर रिजीम चेंज नहीं होता ये जंग जारी रहनी चाहिए। क्योंकि इसमें एक जो डिफरेंट चीज़ हुई इस ट्वीट के अंदर वो ये कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी टैग किया गया, इसके अंदर स्टीव विटकॉफ को भी टैग किया गया। अब इस नाम के ऊपर आपने तवज्जो रखनी है, आगे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं। और इसमें अराक्ची जो साहब हैं उनको भी जो है वो टैग किया गया। अराक्ची जो ज़ाहिर है वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, उनको भी टैग किया गया। अब अमूमी तौर पर हेड ऑफ़ स्टेट ये काम नहीं करते। ये टैग जब आप करते हैं तो इट कैन गो ईदर वे। ज़ाहिर है अगर वो टैग करने के बावजूद आपको इग्नोर कर दें तो आपकी बेइज्जती है, अगर टैग करने के बावजूद वो आपके ख़िलाफ़ बयान दे दें, वो आपको सीरियस ही ना लें, या आपके बयान के ऊपर कोई एडवर्स किस्म का बयान दे दें, तब भी आप मारे गए। तो टैग आप तभी करते हैं जब आप मुकम्मल इंश्योर कर लेते हैं, या अगले के कहने पे मैसेज करते हैं वो कि यार तुम ये करो फिर मैं आपको इंडोर्स करता हूँ, या आपको पता होता है सारी बात। तो यहाँ पर मेरा तज्जिया यही है कि ये विटकॉफ साहब के साथ, या वाशिंगटन में जो उनकी चीफ ऑफ स्टाफ है वो वाया विटकॉफ, स्टीव विटकॉफ फॉर श्योर, इसमें स्टीव विटकॉफ जो हैं वही कलीदी किरदार हैं सारे काम के अंदर, और उनके ज़रिए ये ट्वीट पहले ड्राफ्ट हुआ, फिर सदर ट्रंप को भेजा गया, क्योंकि सदर ट्रंप ने उसके बाद अपना जो एक उन्होंने नेटवर्क बनाया हुआ है ट्विटर की तरह, वो सोशल ट्रुथ या कोई इस नाम से, उन्होंने उसके ऊपर उसे पोस्ट कर दिया, और जाहिर है वहाँ से उठ के फिर वो फौरी तौर पर वो उनका ट्विटर अकाउंट ही कंसिडर होता है, ऑफिशियल उनकी कम्युनिकेशन वहीं से होती है। जैसे ही सदर ट्रंप ने इनके इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट जो है वो वहाँ पर ट्वीट किया तो ये एक किस्म की सदर ट्रंप की तरफ से इंडोर्समेंट आ गई। तो 12 घंटे में तो ये सऊदी अरब जाके सलमान से बात करके वापस आ जाएंगे। यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये खाड़ी युद्ध जो है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इजराइल को धोखा देने के लिए पूरी तरह से ट्रंप अंकल तैयार, क्योंकि इजराइल तो डटा हुआ है, इजराइल कह रहा है नहीं हम नहीं बंद करेंगे, और ट्रंप ने कहा कि भैया हम तो इधर से ऑफ रैंप ले लिए, एग्ज़िट ले लिए, हमारे जो पैसे वैसे बनाने थे वो हमने बना लिए, और अब जो है वो हमारा मिड टर्म अफेक्ट होने वाला है। लोग जो है वो बहुत नाराज़ है, लोग हमको मिड टर्म में हरा देंगे, मिड टर्म में हराने के बाद जो भी हरकतें मैंने की हैं उसके बाद मैं इम्पीच हो जाऊंगा, इसलिए मेरी अब औकात नहीं है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।